you are along with me. You know what, guys? I know especially this person. I am impressed from a long time. Let me I say, when we are started our the first time career, I met to the Mr. Sonu sir. He was absolutely, you can say, appreciable for the students. He always motivated to us how to become the best and best teacher. Don't we think about that? What is his age and what is my? Actually, there is a problem of AF4. But let me I say about that originality of this person. That he is having the well and well. So I request to him today, sir, please you have to come at my place and my institution under my recording place here. I have to just conduct a class for the students. For you especially, I'm invited him. My humble requested he came here at the front of me. So Sonu sir, just like that, we are going to conduct this session for the students 2025 and 26 under. He is especially the math teacher. The math is a very forgotten burden. Having just like that, you have so many the loads on your shoulders. So for the decline, for those impression of the students, he just going to the started session. So sir, just like you have to share about them and a little bit introduction about you. Then after we can start our session. So please. Okay, I am a present in the front of you. I am Sonu Vishwakarma. I am a mathematics teacher, and at this time I will teach you a math subjects. And math subject is a very interesting, and I make a very interesting of the math subjects for you. And in this sessions we are going to study. It means the first chapter of a class 10th real number. तो रियल नंबर को जानने से पहले हम लोग जो क्या है So ठीक है sir, we'll continue class. I'm going to the wait. I'm looking at you. How do the comment something like that? Okay sir, thank you very much. And now in the middle of the class, I will ask from your side few cross questions are here because one time the maths was my favorite subject, but for your favor, I will ask you that some the little bit questions. How do the student they will understand massive criteria of the math? Thank you sir. You can continue. Thank you very much. ओके यहाँ पे देखिए हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, नंबर और सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। बिना सिस्टम के कोई भी काम करेंगे आप सक्सेस नहीं गेट कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई स्टडी है, स्टडी को एक सिस्टम के तरीके से आप नहीं करेंगे तो भी आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर नहीं गेट कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम, ये नंबर और सिस्टम से मिलकर ये बना हुआ आपका वर्ड है नंबर सिस्टम। मतलब नंबर को लिखने का भी एक सिस्टम होगा, नंबर को भी लिखने का एक सिस्टम होगा। उससे पहले नंबर सिस्टम से पहले हम लोग क्या जानेंगे, डिजिट। नंबर सिस्टम से पहले हम लोग जानेंगे डिजिट्स। डिजिट्स क्या होती है, डिजिट जो होती है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। अच्छा, डिजिट्स का जो यूजेस क्या होता है हमारी लाइफ में। विदाउट ऑफ डिजिट we can't make any numbers. Suppose that you have to make any number, then you have a need of digits. Without digit you can't make any numbers. जैसे अभी आपको क्या करना होगा, नंबर लिखना होगा। तो नंबर का जो फॉर्मेशन होता है, नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो डिजिट की हेल्प से होता है। जैसे अभी आपको लिखना है, सपोज दैट 300
46 346। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 346 लिखने के लिए आपको क्या होगा, 346 का यूज करेंगे। तो ये एक 3 डिजिट का नंबर बना, 3 डिजिट का क्या बना, नंबर बना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आपने क्या किया, इसी डिजिट की हेल्प से ये नंबर का आपने फॉर्मेशन किया। तो नंबर सिस्टम में पहले हम डिजिट्स को जाने, डिजिट्स क्या होती हैं, द नंबर्स 0 to 9 इज कॉल्ड डिजिट्स। व्हाट इज द यूजेस ऑफ डिजिट्स, with the help of digits we can create any number just like a 2 digit 3 digit 4 digit। जब भी इस टाइप के नंबर को हमको लिखना होगा तो वहां पे हमको डिजिट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए डिजिट्स से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसको पूछे जाते हैं। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चंस आपका बनेगा, यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। तो क्या बताएंगे आप, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डिजिट स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनेगा कि सर आपने 0 क्यों नहीं लिया, 0 अगर लेंगे तो उसका देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ 0, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, क्या 1 लिया, ठीक है। यहीं पे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात करता, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता आपका, 10 होता। इसी टाइप से 3 डिजिट का बोलता, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100 हो जाता, ठीक। तो इसका मतलब जब भी आपको डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वर्ड यूज करके जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, जैसे हमने कहा स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1 हो जाएगा, 2 डिजिट 10 हो जाएगा, 3 डिजिट क्या हो जाएगा 1000। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे मैं एक टीचर हूं तो एक मैं माध्यम हूं, मीडियम हूं। आप अपने माइंड को कितना, अपने नॉलेज को ब्रॉड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने एक आपको क्या कर दिया, वे दे दिया सीखने का, ठीक है। अब इसके आगे आप कितना सोच सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जैसे अपने बोला 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100 हुआ, तो हम यहाँ पे, अच्छा मेरा माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर के लिए सर ने 1 यूज किया, 2 डिजिट के लिए 10 मतलब 10, 3 डिजिट के लिए 0, मतलब इसमें ये देख रहे हैं कि 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, 0 क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसी टाइप से अगर और भी पूछता, अगर हमने कह दिया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आप डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक टाइप और यहाँ पे बनता है ग्रेटेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, ग्रेटेस्ट से रिलेटेड, ग्रेटेस्ट वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे पूछेगा तो आप 9 बताएं। जब भी 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो 9। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप डिजिट्स को लिख रहे हैं तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पे क्या हो जा रहा है, एंड हो रहा है। तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसलिए 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करेगा तो आप 9 बताएंगे। अगर ऐसे ही पूछता, यहाँ पे पूछता 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या बताते, 99। 3 डिजिट होता, 3 डिजिट होता, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 999। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 4 डिजिट के लिए बोलेगा तो 49 आप बता देंगे, केवल 9 को क्या करना है आपको, इंक्लूड करते जाना है, ठीक है। तो जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो इस तरीके से आप बता लेंगे। डिजिट हमने क्यों पहले इसमें पढ़ाया, नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम 2 वर्ड से मिलकर बना है। सिस्टम हमने पहले ही बता दिया, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग, मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है।
ठीक है। इसी टाइप से आपका क्या नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम से पहले आप डिजिट्स को जानेंगे। डिजिट क्या होती है, 0 to 9, क्या 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो आपके डिजिट्स होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो आप 1 बोलेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, 2 डिजिट नंबर 10 हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहीं से डिजिट से एक कॉन्सेप्ट और आता है निकल के, उसको जानेंगे हम लोग। देखिए वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, तो देखिए ये जो चल रहा है एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, और धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, आपका एक भी चीज छूटने वाली नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो डिजिट से रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। अच्छा, ये मैक्सिमम आपको मिलेगा हर जगह, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, बिल्डिंग ऑफ नंबर, ठीक। दोनों एक ही चीज है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड बिल्डिंग ऑफ नंबर। देखिए किसी चीज को, जैसे आप बिल्डिंग ऑफ नंबर, जैसे आपको एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले किसी चीज की आपको नीड होगी, तभी बिल्डिंग क्या होगी आपकी बनेगी, ठीक है। उसी टाइप से नंबर का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ हमको क्या होती नीड होगी, किसकी किसकी नीड होगी, देखिए पहली जो चीज हमको नीड होगी क्या होगी, डिजिट्स की नीड। किसकी नीड होगी, डिजिट्स। और पहले ही हमने डिजिट्स के बारे में आपको पढ़ा दिया, डिजिट्स क्या होती है, 0 to 9 क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और किसकी जरूरत होगी आप, अच्छा जब डिजिट्स आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे देखो डिजिट्स मिलने के बाद आपको एक और चीज की जरूरत होगी, जिसको आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अच्छा, जब फॉर्मेशन ऑफ नंबर, किस टाइप के नंबर का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और क्या ग्रेटेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करें, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करें, ठीक। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का यूज करेंगे, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे हमने कह दिया फॉर्म अ 3 डिजिट greatest and smallest number with the help of with the help of given digits 5 4 6। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिया, फॉर्म ऑफ अ 3 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स। आपको यहाँ पे गिवन डिजिट्स दी गई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत आपका माइंड जो क्लिक करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है इसकी एरिया क्या है, किस एरिया से ये बिलोंग कर रहा है, तो इसकी एरिया है फॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड बिल्डिंग ऑफ नंबर। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर और बिल्डिंग ऑफ नंबर का जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सबसे पहली चीज है कि जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो असेंडिंग ऑर्डर पे जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर पहले ही आप जान चुके हैं क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। असेंडिंग व्हेन वी गो स्मॉलर टू लार्जर, जब हम क्या करते हैं छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस होता है लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए इसमें दोनों हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा कभी कभी क्या करेगा, डिजिट्स को नहीं लेता है,
यहाँ पे डिजिट्स नहीं है तो आपको इजीली बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ से देखिए जो होगा आपका, जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो यहाँ से जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखिए स्मॉलेस्ट के लिए हमने बताया असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको 3 डिजिट गिवन की गई हैं और आपको इसमें ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉलेस्ट क्या है आपका 4 है, फिर इसके बाद ये कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए इन दोनों में क्या स्मॉलेस्ट है आपका 5 है, फिर लास्ट में क्या बना बच्चा जो 6 राइट कर देंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर का देखिए आपने फॉर्मेशन कर दिया, क्या बना 456। ये आपका एक 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर यहीं पे ग्रेटेस्ट नंबर की बात जब करता, ग्रेटेस्ट नंबर की बात होती तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप क्या करते, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप क्या करते 6 पहले आप क्या करते सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट नंबर की बात देखिए क्या करेंगे आप लोग, चलिए ग्रेटेस्ट नंबर को हम थोड़ा सा, चलिए 1 मिनट देखिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करेंगे। असेंडिंग को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर आते हैं कम टू द पॉइंट्स। असेंडिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा नाम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग को हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जर टू स्मॉलर। तो यहाँ भी देखिए लार्जर क्या है 6 है, फिर इसके बाद लार्जर क्या है 5, फिर क्या है 4। तो देखिए ये बन गया आपका 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, उसको लेते हैं। अभी कभी क्या करता है, Wow, sir. Matlab, really, I am quite surprised to look at the data of here. Even that is very fantastic, and we are looking at here. Just like this, sir, he has taught you what do you mean about a formation of a number. Sir, just like you told me about a building of number. Yeah. I hope ki students they are listening the first time about it. I hope they are listening the first time about it. Let me also use a mic for this. Actually, otherwise my voice will not audible for them, है ना। So just like the students they heard the first time the what do you mean about the building of numbers. So sir, how the students they will analyze if suppose that there is MCQ questions and examiner asks to you which word is a building of the numbers, so what will the best suitable the examiners examples to students they will understand and they will respond the answer of that question. yeah, okay. Suppose that formation of number and building of numbers, for it means suppose that you have given a digits, you have given us some digits, Okay. and with the help of some digit you have to create a 3 digit 4 digit smallest and greatest number. Okay. Then you will go now ascending order and descending order. Okay. It means first for the smallest number you will use ascending order, and for the greatest number you will use a descending order. Means suppose that any person asks to you, it means about to formation of number and building of number. It means by this process, by this concept, you can create a smallest and greatest number. There is no problem the creations of smallest and greatest number. Okay, it means that the building of numbers, the procedure will start from ascending order. Yes, you can say the procedure of the descending order. They are the formation of the two types of number. I understood. What about you? You can just understand about it. Second things we are look at here. This is the example. The greatest number should be the start from here. Greatest number the 654. Already we are know in the sequence of 456. So we can go 654 is the greatest formation number, and 456 is the smallest number. And we are looked at here the smallest and the greatest, and greatest 3-digit number under 654, and the smallest 3-digit number 456. Okay. I hope you will understand this concept. Sir is going to teach to you the next process of this. Thank you, sir. Can continue. Okay. देखो सबसे बड़ी चीज होती है, हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ नंबर पढ़ाया। अभी हमको लगता है कि आपको फॉर्मेशन ऑफ नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी बच्चे को जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके पास है और नॉलेज को किताबों में मत रखो, अपने माइंड में बूस्ट करो। यहाँ पे रहेगा जब नॉलेज, आप कहीं पे अगर जाएंगे
किसी भी प्लेस पे रहेंगे तो आपको क्या होगा, किसी भी चीज को बताने में, एक्सप्रेस करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी है यहाँ पे देखिए दो चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, हमेशा तीन चीजें। देखिए हर चीज क्या होता है, जैसे ग्रेटेस्ट है और क्या हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ, हर जगह क्या है, अपोजिट, और मतलब क्या है, हर एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। जैसे स्मॉलेस्ट की बात की, स्मॉलेस्ट का अपोजिट अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ नंबर में दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा टाइप हम जानते हैं, कभी कभी क्या करता है, पहले टाइप में क्या किया है, जीरो मेंशन नहीं करता है, जीरो मेंशन नहीं करता है। यहाँ पे देखिए जीरो को हमने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इजिली बना ले जाते हो, इसको बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दूसरा टाइप, अगर यहाँ सपोज दैट, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, केवल हम क्या करते हैं, चेंज द डिजिट्स, मतलब डिजिट्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए। जीरो कामा 5 कामा 6, ओके, केवल हमने क्या किया, डिजिट्स को चेंज किया। अब इस डिजिट्स की हेल्प से अगर आपको क्या हो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, जब जीरो आ जाएगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए जीरो आने पर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या आप कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को हमने बताया, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे। तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर यही कहता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है। फिर यहीं पे डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है लार्जर टू स्मॉलर, लार्जर टू स्मॉलर। और जो भी डेफिनेशन क्रिएट करिए आप क्या करिए, अपने माइंड का यूज करिए, आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब आप अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे, अपनी भाषा में किसी चीज को बोलना चाहेंगे तो आप अच्छे से किसी चीज को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और जब कहीं से आप रटे होंगे, किसी की लिखी हुई बातों को आप हूबहू बोलना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, उस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कहीं पे क्या कर भूल जाएंगे। तो इसलिए आप, जैसे बुक होती है, बुक क्या होती है, एक मीडियम होती है, बुक एक माध्यम होता है। उसको पढ़ने के बाद वो, उसको ये सोचिए कि हम अपनी लैंग्वेज में किसी के सामने कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे, तो आप अच्छे से चीजों को क्या करेंगे, पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे जीरो आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या पता लगता है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर से क्या पता है, स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर, तो हम बोले थे कि सबसे छोटा नंबर, अब यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटा जीरो है, तो जीरो को लेकिन नहीं राइट करेंगे, क्यों, क्योंकि जीरो को जब राइट कर देंगे तो जीरो जब किसी नंबर के बिफोर में आ जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप सपोज दैट आप जीरो लिखते, 0 5 6, तो जीरो पहले आ गया तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जीरो को जब भी डिजिट्स में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो जीरो को आप पहले ना लिख के जीरो को लीव करके देखेंगे छोटा नंबर क्या है, तो आप देख रहे हैं 5, तो सबसे पहले आप 5 को राइट करें, इसके बाद जस्ट तुरंत इसके बाद आप क्या करेंगे, जीरो को राइट करेंगे, इसके बाद आपका 6 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया आपका, 506 मीन्स 506, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात करें हम लोग, ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए अगर, चलिए ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें हम लोग, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है देखिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे ग्रेटर डिजिट क्या है, 6, फिर इसके बाद 5, फिर क्या हो गया 0, 650 बन गया। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ नंबर, बिल्डिंग ऑफ नंबर से यही आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सबसे बड़ी चीज है अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखो, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, बिल्डिंग ऑफ नंबर। कभी कभी डिजिट्स जब दे दी जाती है, क्वेश्चंस इस टाइप का दे दिया है और डिजिट्स के हेल्प से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का फॉर्मेशन करना होता है, तो स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन हम आपकी कंफ्यूजन को ही दूर कर दिए। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तुरंत आपका माइंड कहाँ पे क्लिक करना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ नंबर से ये क्वेश्चन दिया गया, और फॉर्मेशन ऑफ नंबर में पहले ही बता दिया गया है
कि जब भी डिजिट दी जाएगी तो स्मॉलेस्ट के लिए आपके असेंडिंग ऑर्डर यूज कर लेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर यूज कर लेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर हम लोग आएंगे। ठीक, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर की बात करेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर, और यू कैन से दैट टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर में पहला जो आता है नंबर सिस्टम की बात अगर की जाए, या नंबर को क्लासिफाइज कैसे किया गया है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, इरेशनल। इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर जो होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर की बात अगर करेंगे, या यहाँ पे आप कह सकते हो, चलो रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें, सॉरी, चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो है नंबर ऑफ टाइप्स में जो आएंगे रेशनल, ये रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, रेशनल नंबर एंड नॉन रियल। ठीक है, अब रेशनल नंबर की बात अगर हम लोग करें, रेशनल नंबर की बात अगर की जाए, तो रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाता है, चलो रेशनल नंबर में आ जाता है आपका, रेशनल नंबर में आ जाता है आपका नेचुरल नंबर, और फिर इसके बाद जो हो जाता है नेचुरल के बाद आपका होल नंबर, फिर इंटीजर। अब देखिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं, आपके रेशनल होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं वे भी क्या होते हैं, रेशनल। ऑल इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल। ठीक है, अब देखिए रेशनल कैसे होते हैं, रेशनल पहले ही बताया गया है कि जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में क्या हो, रिप्रेजेंट हो, और वेयर q नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी भी नंबर को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखते हो और डेनोमीटर उसका 0 नहीं होना चाहिए, इन एनी सिचुएशंस इट मींस द वैल्यू ऑफ डेनोमीटर शुड नॉट बी 0। मतलब डेनोमीटर किसी भी सिचुएशन में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो एक रेशनल नंबर। अच्छा, अभी बोला जाएगा कि नेचुरल कैसे रेशनल है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। फॉर द एग्जांपल्स यू कैन से मींस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके क्या है, नेचुरल। अच्छा, 1 क्या आपका रेशनल है, यस। कैसे है रेशनल, इसको देखिए, 1 बाई 1 को 1 लिखा जा सकता है, और 1 राइट करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, और ये क्या करेगा, p बाई क्यू का फॉर्म बना लेगा। इसलिए 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर के साथ साथ एक क्या है, रेशनल है। 2 को भी उसी प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 बाई 1, ये भी p बाई क्यू का फॉर्म बना लिया। ठीक है, 3 भी है। तो उसी टाइप से होल नंबर्स की अगर बात करेंगे, आप होल नंबर्स की अगर बात करेंगे तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखो 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 0 बाई 1 राइट कर सकते हो। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 बाई 1, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 बाई 1। तो ये जितने देख रहे हैं यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, p बाई क्यू का क्या बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं। तो कोई नंबर जब p बाई क्यू का फॉर्म बनाएगा तो वो आपका एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इंटीजर की बात कर लो, इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं पहले, अभी चलिए एक एक स्टेप करके हम लोग क्लासिफाइड, अभी इंटीजर को भी करूंगा। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाता है। नेचुरल नंबर को अगर आप क्लासिफाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर में आ जाता है, एक मिनट, चलिए ये देखिए हमने क्लासिफिकेशंस किया, रेशनल का अभी तक किया हमने। ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। अब देखेंगे हम नेचुरल नंबर का जो है, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है। ठीक है, और देखिए जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल, इरेशनल, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्यों रियल नंबर होते हैं,
इसलिए रियल नंबर होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और जो भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वे क्या होते हैं, आपके रियल होते हैं। रेशनल भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, इंटीजर भी, और नेचुरल भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या है, रियल है। तो इसको रियल नंबर को और अच्छे से मैं डिफाइन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे जहां तक उम्मीद है ये क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर किसी भी चीज को लेकर, जो भी मैंने आपको बताया, अगर किसी भी चीज को लेकर अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, बहुत आगे तक ग्रो करेंगे। और आपके मेरे साथ साथ मैं आपको भी उस ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। Definitely, Sonu sir. And even as students, I hope you are understood everything and you are strive for the well mathematics educator. So Sonu sir is the best for you because nobody like that who will explain the data analysis accordingly, the math procedure and property and conceptual thing. Yes, sir. I think the students they are satisfied. Really, they are appreciated for us. And thank you very much, everyone. You are joined under the English Wala. Thank you very much. Thank you very much, sir. You are joined and